सतनाम। वाहिगुरु साहिब जियो। कच्चों कंचन पयो शब्द गुर सरवण सुनियो। बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो। लोयों होयो लाल नदर सतगुर जद धारै। पाहन मानक करै ज्ञान गुर कहो विचारै। काठों श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुर चरण जिन परसया से पश प्रेत सुर नर भये। सतगुर चरण जिन परसया से पश प्रेत सुर नर भये। गुरु गरीब निवाज चबर छतर तख्त दे मालक ज्ञान दे महान सोमे ज्ञान गुरु शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा। बिन शब्द जग बौरानंग हलत पलत दे रखियक सर्ब सांझी वालता दे प्रतीक मनुखता दे रहबर जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जीओ। सतगुरां दी मुबारक पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभायमान जुड़ मिल बैठे प्यारे सतसंगी जनों, सतगुरां ने अपार कृपा की है, बख्शिश की है, तरस किया है, जिसका सदका धन 8वें पातशाह साहिब सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जियां दे पावन पवित्र इतिहासिक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे हाजरी भरन दा वडमुला बेशकीमती समा प्राप्त होया है। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां दे मुबारक चरनां च बैठ करके गुरु की पवित्र बाणी सरवण कर आप जी अपने वडमुले बेशकीमती जीवन समय अते सवासां नूं सफला करन दा सफल यतन कर रहे हो। हुण ही आप जी ने आसा जी की वार दा शब्द कीर्तन गुरु प्यारां पासों सरवण किया। हुण समा है जो लड़ीवार गुर शब्द विचार चल रही है, जो अज दा बेशकीमती वडमुला शब्द सतगुरां ने दात वजों साडी झोली दे अंदर पाया है, तिस दा मूल पाठ अति सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा पासों आप जी ने सरवण किया है। जिथे सतगुरां दी रहमत सदका अज आपां इस पवित्र शब्द की विचार करनी है,
ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਧੂਰਾਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ, ਓਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਲੀਪਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਧੂਰਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਚੂੰਕਿ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਦਿੱਤਾ ਕਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਕਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬੀਜੈ ਦੁੱਖ ਖਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰਾਫਤਾ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ,
ਅਧੂਰੇਪਨ ਨੂੰ, ਖਾਲੀਪਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਮਾਨਵਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਹ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਰਾਫਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਰਸ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਮਨੁੱਖੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਏ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਸੇ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਖਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਖਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਆਰੰਭਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਲ ਦੁਆਲਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਤੇ ਸਿਖਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਖਰ ਹੈ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਖਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਖਰ ਹੈ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ
पर धन बाबा जेठा महाराज जी की कीमत नहीं हैगी। क्यों? क्योंकि 7 साल की आरबला तो पहला ही माता जी भी चलाना कर गए ने ते पिता जी भी चलाना कर गए ने। देखो प्यारिओ, दुनिया के 2 बहुत वड्डे दुख ने। आप यह कह लीए भी वो शिखर ने दुखों का। पहला दुख है गरीबी। गरीबी मां दुख है। ते दूजा दुख है प्यारिओ, माता पिता का साया बचपन च सिर तो उठ जाना। आप सारे परिवार वाले बैठे हाँ, समाज च रहन वाले बैठे हाँ, ते प्यारिओ जिहदा माता पिता बचपन च चला जाए, उहदे जीवन दे अंदर कितने दुख, कितनियां तकलीफां हो सकदियां ने आपां देख सकते हैं। लाहौर दियां गलियां, चूना मंडी दियां गलियां दे अंदर कोई पुछण वाला नहीं हैगा। जिहड़े दादके ने उन्होंने उन्होंने एक पासे कर दिता है। लाहौर दे अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं हैगा जिहड़ा उन्हां दी बांह फड़न वाला होवे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। पर गुरमुख प्यारिओ, ये यात्रा जिहड़ी है ना, इहदे चों एक चीज सानू आवाज़ सीखण नूं मिलदी है कि गुरु धन सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी का जीवन चढ़दी कला वाला जीवन सी। हालांकि इहदे अंदर कोई दो राह नहीं हैगी कि सतगुरु खुद परमेश्वर सन, आप पार ब्रह्म सन। पर उन्होंने साडे लई, सानू समझाउण दे लई कि संसार दे अंदर किन्नियां तकलीफां, किन्ने दुख, किन्नियां पीड़ावां तुहाडे जीवन च आ सकदियां ने। तुसीं हमेशा ढैंदी कला वल नहीं जाना, बल्कि चढ़दी कला दे वल जाना। चढ़दी कला शब्द बड़ा कीमती है। रोजाना तुसीं घट तो घट 3 वारी अरदास बेनती कर दिओ महाराज दे चरनां च। ते अरदास दे अंदर आपां एक शब्द वरतदे आ, नानक नाम चढ़दी कला। हुण चढ़दी कला दा जेकर अखरी अर्थ करिए ते चढ़दी कला दा अर्थ की है? अखरी अर्थ है प्यारिओ 2 शब्दां नाल बनदा है, चढ़दी प्लस कला। कला दा अर्थ हुंदा है शक्ति, ताकत, समर्था, एनर्जी। और कला दा अर्थ हुनर भी हुंदा है। ते चढ़दी दा अर्थ है प्यारिओ हमेशा बुलंद। और जेकर आपां खालसाई बोले दे अंदर इस चीज नूं लईए ते चढ़दी कला दा अर्थ हुंदा है हमेशा ही बुलंद हौसले दे अंदर जीवन बसर करना। भावें तुहाडे जीवन च दुख है, सुख है, उतार है, चढ़ाव है, तुसीं कदी भी ढैंदी कला वल ना जाओ। देखो, मनमुख ते गुरमुख दे अंदर छोटा जिहा अंतर है। ते छोटा जिहा अंतर जिहड़ा ना, ये जमीन ते आसमान का अंतर बन जाता है। अंतर की है? गुरमुख हरेक चीज नूं प्रवान करता है। ध्यान दिया जे, गुरमुख हरेक चीज नूं प्रवान करता है, कबूल करता है। मनमुख बंदा सिर्फ उन्हां चीज़ां नूं प्रवान करता है जिन्हां नूं वो प्रवान करना चाहता है, बाकियां नूं नहीं करता। गुरमुख जेकर सुख है तो प्रवान करता है, ते जेकर दुख आ जाए उन्होंने भी खिड़े मत्थे प्रवान कर लेंदा है। केतियां दुख भूख सद मार, यह पेदात तेरी दातार। जेकर हार है, जेकर जित है तो जित नूं कबूल करता है, तो हार नूं भी कबूल करता है, प्रवान करता है। मनमुख बंदा ऐसा नहीं कर पाता। वो कहता है कि एक ही चीज होनी चाहिए है, सिर्फ सुख होना चाहिए, सिर्फ लाभ होना चाहिए, सिर्फ जित होनी चाहिए है, सिर्फ सफलता होनी चाहिए। वो दूजे पक्ष नूं बिल्कुल नकार दिंदा है। पर गुरमुख ऐसा नहीं करता। गुरमुख हरेक चीज नूं प्रवान करता है। इनू ते महाराज कहते हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। जैसा मर्जी समा होवे,
गुरमुख ने सहज च रहना है, टिकाऊ च रहना है। देखो जीवन है तेंदे अंदर उतार चढ़ाव, लाभ नुकसान, दुख सुख, माड़ियां परिस्थितियां, खोटियां परिस्थितियां, चंगियां परिस्थितियां ये बनदियां रहिंदियां ने, इन्हां दा आउणा जाना लगा रहिंदा है। पर गुरमुख वो है, गुरु नाल जुड़िया वो है जो हर समय हर वक्त अपने आप नूं स्थिर रख सकदा होवे, टिकाऊ च रख सकदा होवे। बाहर भावें जैसा मर्जी चलदा रहे। देखो मनमुख बंदा है सागर दी उपरी सतह की तरह। जदों तुसीं उपरी सतह देखदे हो ना सागर दी, तो तुहानूं लगेगा कि सागर अशांत है, कदी शांत नहीं होया। हवा के थपेड़े इधरों वजदे ने, इधर लगा जाता, उधरों वजदे ने, उधर लगियां जांदियां ने लहरां। कदी भी एक छिन दे लई वो टिकदा नहीं। पर जिहड़े सागर की गहराई च जाण वाले ने, वो कहंदे जेकर कोई टिकी हुई चीज है ना तो वो सागर ही है, होर कख नहीं टिकिया होया, बिल्कुल शांत। बाहरों बेशक साडे जीवन च तूफान चलते रहन। देखो ना गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी के सवैये चल रहे हैं। भाई सत्ता जी ते भाई बलवंड जी गुरु अमरदास महाराज जी के बारे कहते, झक्खड़ वाओ ना डोलई पर्वत मैरान। कहते जिस तरह सुमेर पर्वत है ना, भावें लखां तूफान चलते रहन, वो टस तो मस नहीं हुंदा, अपनी जगह तो एक रंचक मात्र भी हिलदा नहीं। इस तरह गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने भावें बाहरी परिस्थितियां जैसियां मर्जी होण, तूफान चलते रहन, अंदरों बड़े स्थिर ते बड़े टिके हुए हैं। बाहरों भावें जैसा मर्जी समा होवे, अंदरों टिकना। गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी के जीवन की आरंभता हुंदी है, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। ते महाराज पहुंचते ने, बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। शुरुआत हुंदी है, लोग जिहड़े ने लाहौर दे वो कहंदे ने कि इस बच्चे का सहारा कौन बनेगा, इनू शरण कौन देगा, इनू आसरा कौन देगा। ये आरंभता है। पर प्यारिओ जिहड़ा शिखर है वो की है? शिखर है एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। जिन्हों शरण देने वाला कोई नहीं सी लभदा, अज उस धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी का घर लखां करोड़ां बंदियां नूं शरण च लैण दी समर्था रखदा है। जेड़ा जेड़ा व्यक्ति सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी की शरण च आ गया, ते महाराज जी का कलावा इन्ना वड्डा है प्यारिओ, सतगुरु जी जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संधा। जिन्हों कोई अपनी शरण च नहीं सी रखना चाहता, अज वो धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी का घर ऐसा है, असी जाग के अरदास करते हैं, सारा जगत झोली अड्ड के अरदासां करदा है, महाराज सानू अपनी शरण दे अंदर लै लो। जगत गल्लां करदा सी, संसार गल्लां करदा सी कि इनू खाण नू कौन देगा, कौन है जो इनू खाण नू देगा। पर गुरमुख प्यारिओ ये शुरुआत सी, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। ते शिखर की है प्यारिओ? शिखर है पूरी दुनिया। पूरी दुनिया भुखी सौ सकती है, पर जिहड़ा धन गुरु रामदास महाराज जी की नगरी च पहुंच जाता है, जिहड़ा धन सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी की शरण लै लैंदा है, वो भुखा नहीं रह सकता। आरंभता कित्थों हुंदी है कि रोटी नहीं है, प्रशादा नहीं है, खाण नू नहीं है। पर शिखर की है? ओह जिहड़ा 7-8 सालां दा बच्चा सी, जिहदे कोल खाण नू नहीं सी, पैर नू नहीं सी, अज वो सारी दुनिया दा पेट भरदा है। ये शिखर है।
आरंभता है हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता। शिखर है बैठा सोडी पातशाह। हुण थोड़ा जिहा ध्यान दिया जे, इत्थे पातशाह दा अर्थ कोई संसारी बादशाह ना ले लिया जे, किसी खिते दा कोई बादशाह ना ले लिया जे, क्योंकि जिहड़े संसारी बादशाह ने ना, महाराज कहंदे ये 4 दिनां दे हुंदे ने। ये भूपत राजे सब दिवस 4 के, झूठे करत दिवाजा। कोई किसी खिते का शहनशाह बनता है, कोई खिते का राजा बनता है, कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल। जितना समा वो रहिंदा है, लोग उन्होंने जानते ने, उन्होंने देखते ने, उन्होंने सुनते ने, उहदी वडियाई करते ने। पर प्यारिओ, धन सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी बादशाह नहीं, बल्कि सच्चे पातशाह ने। वो पातशाही जिहड़ी सदीवी है, जिहड़ी अटल है, जिन्हों दुनिया की कोई ताकत गवा नहीं सकती, जिन्हों दुनिया की कोई ताकत खो नहीं सकती। ये भूपत राजे सब दिवस 4 के, झूठे करत दिवाजा। को हर समान नहीं राजा। ये पातशाही ऐसी है जिहड़ी सदीवी है, सदा है, जिहड़ी कदी जा नहीं सकती। और दिती किन्ने है? आद सच जुगाद सच है भी सच। ये पातशाही ऐसी है जिहड़ी हमेशा है, सदीवी है, सदा है, जिहड़ी कदी जाएगी नहीं। ऐसे सतगुरु धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जियां दा तुसी आगमन पुरब, प्रकाश पुरब मना रहे हो, जिन्हां ने दोवां थावां ते साडी अगवाई कीती है। हुण थोड़ा जिहा ध्यान दिया जे, जैसे महाराज जी बासर के आउंदे ने, जैसे सिंह साहब जी आप जी नूं कह रहे सी कि नानी ही हुंदी है बस। ये साडे समाज का बहुत वड्डा दुखांत है, साडी पीड़ा है। पीड़ा यह है कि असी दिमाग के तल ते जिउंदे हां। ख्याल करिया जे, मैं बेनती आरंभ विच कीती सी कि संसार तो बिना निरंकार नहीं है। दो चीज़ां परमात्मा ने सानू वडमूलियां दित्तियां ने प्यारिओ, एक साडा हिरदा, दूजा साडा दिमाग। दो दित्तियां ने, इसे करके दोनों ही अर्थ रखदियां ने। पर एक गल नूं याद रखियो हमेशा, दिमाग 2 ते 2 4 समझदा है बस, इस तो अगे नहीं जा सकता। दिमाग एको ही भाषा जानता है, लाभ फायदा। एको ही चीज जानता है कि कित्थे मैनूं लाभ हो रहा है, बस इस दे लिए इस तो अगे कख नहीं हैगा। दिमाग नूं वरतो मार्केट दे अंदर, बाजार दे अंदर, जिथे तुसीं बिजनेस करना है, व्यापार करना है, दुकानदारी करनी है, उत्थे खूब इहदी वरतों करो। पर जे करके ते तुसीं दिमाग परिवार च लै आंदा, बाजार चों कढ के तुसीं दिमाग परिवार च लै आंदा, ते दिमाग ऐसी चीज है सक्के भरावां दे विचकार दीवार खड़ी कर दिंदा है। ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ, ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਕਾਲਜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਪत्ति ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਵਾਦ ਨਹੀਂ। दुनिया का सब तो बेसमझ बंदा होना है जिन्हें कहावत बनाई कि लेखा मावां धियां दा हुंदा है। सब तो बेसमझ बंदा। कमाल दी गल है, मां ते धी तो वड्डा रिश्ता किहड़ा हो सकदा? वो उत्थे भी लेखे करी जांदा है। कहंदा जदों मां ते धी दी गल आउंदी है ना, और लेखा होवे, उत्थे मां मां नहीं ते धी धी नहीं। और जेकर अज दे हालात नूं देखिए तो सही कह रहा है। प्यारियों, दिमाग दीवार खड़ी करेगा,
पर जेकर तुसी हिरदे दी सुनोगे ना, ते हिरदे दी सुनदिया सार वड्डा कहेगा 2 फुट जमीन ही है, छोटे नूं कहेगा तू 4 ले लै बई, तू छोटा है, तेरा हक बनता है, 2 फुट की गल है, तू 4 फुट ले लै। ते छोटा कहेगा नहीं वीरे तू वड्डा है, तेरा ज्यादा हक बनता है, ये कोई वड्डी गल थोड़ा है, मैं क्यों ला दो, तू 4 ले लै। ये उदों हुंदा है जदों तुसीं हिरदे नूं तरजीह दिंदे हो परिवार विच। ते जिहड़ा भरा भरा दा नहीं होया, जिहड़ा भरा भैण दा भरा नहीं बनया, जिहड़ा पुत्र अपने माता पिता दा नहीं होया, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁਣੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। जिस वेले गरीबी आई, दुख आया, तकलीफ आई, तो कोई बात पूछने वाला नहीं सी गुरु रामदास महाराज जी की, क्योंकि संसार इस तरह करता है, इस तरह सोचता है, इस तरह चलता है। पर प्यारिओ, जदों 5-7 साल की उम्र च तुहाडे माता पिता चले जाना, तो बहुते बच्चों की हालात यही हुंदे ने कि वह मंग तंग के गुजारा करते हैं, किसी ते आधारित हो जाते हैं। पर गुरु रामदास महाराज जी ने सानू समझ दी भी किसी ते डिपेंड नहीं होना, किरत करनी है। बेशक करबला बहुत छोटी है, पर नानी ने कहा पुत्र आ फड़, आ घुंगणियां बेचिया कर। और प्यारिओ, किरत छोटी वड्डी नहीं हुंदी। दुनिया के किसी भी धर्म नूं पढ़ो, 4200 धर्म है संसार के अंदर करीबन, ते 4200 के 42 धर्म रहबर जिन्ने भी आए, उन्होंने पहले नंबर ते क्या नाम जपो, रब की इबादत करो। केवल दुनिया चिक्को सच्चे पातशाह धन गुरु नानक महाराज जी ने जिहड़े कहंदे ने पहला किरत करो। 47 च उजाड़िया गया, 84 च उजाड़िया गया, उस तो पहला साडा पता नहीं कितना कु उजाड़ किया गया। पर गुरमुख प्यारिओ, तुसीं डिगदे क्यों नहीं, मंगदे क्यों नहीं? ਉਹਦਾ कारण सिर्फ एको है, क्योंकि गुरु नानक महाराज जी ने साडियां रगां च ਉਹ चीज़ भर दी है जिहड़ी सानू डिगन नहीं देंदी, जिहड़ी सानू मंगन नहीं देंदी। गुरु का सिख किस दा पेट भर सकता है, दे सकता है, पर वो मंग नहीं सकता किसी तो। इसे करके ही दुनिया दे अंदर जिथे भी तुसीं चले जाओ, भावें सिख कुल थोड़ा है, भावें बहुता है, वो गुरेज नहीं करता कोई मदद मंगण वास्ते आ गया। ये चीज सतगुरु गुरु नानक महाराज जी ने साडे अंदर पाई, और इसनूं बाखूबी गुरु रामदास महाराज जी ने अपने बचपन के अंदर करके दिखाया कि मंगना नहीं, करके खाना है। महाराज जी ने मंगिया नहीं, करके खादा है। और नाल ही सानू हुक्म किया कि कदी भी मायूसी, कदी भी उदासी, कदी भी डिप्रैशन च नहीं जाना। छोटा जा नुकसान हो गया तो आपां डिप्रैशन चले जाते हैं। मैं हुणे बेनती की सी, सब तो वड्डा दुख गरीबी हुंदा है ते माता पिता दा चले जाना हुंदा है। गुरु रामदास महाराज कहंदे मेरे वल देखो, अगर तुसीं संसारी तौर ते देखोगे तो मेरे तो वड्डा दुख कित्थे है तुहाडे कोल। छोटे छोटे दुखों के कारण तुसीं मायूस हो जाते हो, डिग पैंदे हो। बड़ी प्यारी घटना का जिक्र मिलता है, ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने घटना का जिक्र किया है। वो कहते कि काबुल तो एक सिख सी जिसका नाम सी भाई शोमा सा। उदास हो गया, हालातां दे थपेड़े जर ना पाया, जीवन जिउना बहुत औखा है। उन्हां लई जिन्हां ते गुरु की कृपा ने, पर जिन्हां ते गुरु की टेक है, रहमत है,
दुखों के पहाड़ उन्होंने बड़े छोटे जे बन जाते हैं, तो जिन्हों ते कृपा नहीं छोटे छोटे दुख उन्होंने पहाड़ बन जाते हैं। फैसला कर लिया कि जीवन च कोई रस नहीं, खत्म हो जाना, आत्महत्या कर लेनी है। कोई गुरु का सिख संगत मिल पई, पूछा किधर, दस दिता, तो कहते काम ना कर, जा गुरु रामदास महाराज जी के दर ते जा। वो थां ऐसी है जिथे कंगाला नूं शहनशाह बनदिया देखा जा सकता है। उत्थे चला जा, शहनशाह बन जाएगा। वो कहता कि उत्थे की है, किन्ने दिन गुरु मैनू देगा, किन्ने दिन मंग के खा सकदा मैं। तो कहते मंगना नहीं, उत्थे करना है। की करना है? जो गुरु ने किया सी। की गुरु ने किया सी? दस्या कि गुरु ने घुंगणियां वेचियां जदों उन्हां दी संसारिक तौर पर उम्र बहुत छोटी सी। उही काम जाके शुरू कर लिया, हौली हौली वटक होनी शुरू हो गई। प्यारिओ अज होर कल होर, जिहदे ते गुरु की कृपा उहदे दिन बदल जाते हैं, बदलदियां समा नहीं लगता। हुण जोड़ा समा उन्हें मेहनत करनी हुंदी करदा, फिर सेवा करदा। ते प्यारिओ एक दिन गुरु साहब जी आए, पूछा किन्नी वटक हुई है, कहंदा जी आ हुई है, लिया दे दे। फिर दूजे दिन फिर लिया दे दे। तीजे दिन गुरु साहब जी पहुंचे ने, तो उन्हें सारा जो वटिया होया सी महाराज दे सन्मुख रख दिता। शोमा शाह बेपरवाह गुरु का शाह, महाराज जी ने बचन कहे कि जिहड़ा गुरु नाल जुड़ गया उसके जीवन च मायूसी है ही नहीं है, उसके जीवन च उदासी है ही नहीं है, उसके जीवन च डिप्रैशन के लिए जगह है नहीं है। ऐसे सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज, आप जी अज प्रकाश पुरब उन्हां दा मना रहे हो, तो इन्हां नूं कित्थों कृपा मिली? जिन्हां दा अज प्रकाश तुसीं मना रहे हो, उन्हां नूं कृपा मिली धन गुरु अमरदास महाराज जी तो। अज दा सवैया जिहड़ा है वो सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज, उन्हां दी उस्तत दे अंदर भट्ट साहिबान जी कृपा कर रहे ने। कहते रहो संत हो टोल, साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपसीए मुखों ए पंडित मिठे। देखो चलना बड़ा जरूरी है, तां तुसीं मंजिल ते पहुंच सकते हो, पर सिर्फ चलना तुहानूं मंजिल ते नहीं लैके जांदा। सिर्फ चलना मंजिल ते नहीं लैके जांदा, सही चलना मंजिल ते लैके जांदा है। तुसीं चलदे हो पर भटक गए हो, फिर चलना चलना जिहड़ा है तुहानूं किते नहीं लैके जाएगा, उजड़े पा देगा। हुण भट्ट भिखा जी कहंदे ने, कहंदे कि मैं बड़ा चलिया, कित्थे कित्थे गया? उन्हां सारियां कोल गया जिन्हां नूं कहा जांदा सी कि रब दे प्यारे ने, संत ने, महापुरुष ने। पर मैं जाके देखदा, की देखदा? रहो संत हो टोल, साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपसी मुखों पंडित मिठे। बड़े सन्यासी, बड़े पंडित, बड़े विद्वान, तप करने वाले, बहुत संत जिन्हां ने पहरावा संतां वाला पाया सी, भेख संतां वाला बनाया हुआ सी, बड़े देखे। देखो गुरमुख प्यारिओ, अज भी ऐसा बहुत कुछ हुंदा है। पहरावा, बाहरी भेख उन्हां वर्गा है जिहड़े पहुंच चुके ने। गल्ली अस्सी चंगियां, आचारी बुरियां, मनो कुसुदा कालियां, बाहरों चिटमियां। पर भट्ट साहब जी कहते थोड़ा चलो तो सही, थोड़ा देखो। देखो गुरमुख प्यारिओ, भट्ट साहब जी कहते मैं 1 साल चलिया, थां थां ते गया, पर जिहदे कोल गया मैनू पता लगा ये सच्चा नहीं, मैं उहदे कोल बैठा भी नहीं। चेला ऐसा होना चाहिए जिन्हों सही मायनिया दे अंदर इस चीज की परख होवे भी पूरा गुरु कौन है। महात्मा बुद्ध के बारे कहा जाता है कि जिहड़े गुरु सन ना उहदे तो दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? कोई उन्होंने अपना चेला नहीं सी बनाना चाहता। क्यों नहीं सी बनाना चाहता? क्योंकि जिहड़े भी गुरु कोल जांदे सी, गुरु कहंदा सी आ काम करना है,
जेकर गुरु ने कहना अद्धी रोटी खानी है तो वह अद्धी तो भी अद्धी खाते। जे गुरु ने कहना भी 3 घंटे लटके रहना है तो 3.5 लटकते। भाव जो गुरु ने क्या वो पूरा किया। जदों पूरा कर लिया गल बनी नहीं तो फिर जिहड़ा गुरु है वो पिछा छुड़ांदा है। सानू काम ही ऐसे दस दिते जाते हैं धर्म के नाम ते तुसीं आ करो, वो साडे तो हुंदे कोई नहीं। असीं जांदे आ जाके कहंदे महाराज गल नहीं बनी। महाराज अगों कहंदे ने जो मैं कहा सी कीता, तुसीं कहंदे महाराज जी गलती हो गई, मैं तो पूरा कर नहीं पाया। वो शर्तां ही ऐसियां ला दिंदे ने जिहड़ियां शर्तां तुसीं चाह के भी पूरियां नहीं कर सकते। मान लो तुसीं किसी नाम तरीक बंदे कोल, बाबे कोल, पखंडी कोल गए हो, उन्हें शर्त रख दी भी काम तां पूरा होगा जेकर उस बंदे दे मत्थे ना लगे जिहड़ा बंदा शराब पींदा है। हुण सारियां दे मत्थे ते लिखिया नहीं होया भी शराब पींदा है। कोई भूआ दा, कोई मामे दा, कोई ताए दा, कोई सज्जे, कोई खब्बे घर आ गया। काम तो वैसे नहीं बनना हुंदा, पर वो शर्त ऐसी रख दिंदे ने कि वो ब्लेम सिर्फ तुहाडे ते लगे, उन्हां ते ना आवे। तो महात्मा बुद्ध जिहदे कोल जांदे वो पूरा करदे, इसे करके उन्हां तों भजने शुरू हो गए गुरु। भट्ट साहब जी कहते मेरे तो भी भजने शुरू हो गए, मैं जिहदे कोल जाऊं मैनूं कहे, क्योंकि उन्हां दी करनी ते कथनी, उन्हां दा बाहरी पहरावा ते उन्हां दा जीवन बिल्कुल अलहदा सी। देखो प्यारिओ, अज साडा भी बड़ा वड्डा दुखांत है, भावें आपां पंजाब दी गल करिए, भावें हरियाणे दी, भावें पूरे देश की गल करिए, जिथे जिथे भी सिख जगत सिख बैठा हुआ है। अज भी बड़े नाम तरीक ने, देहधारी गुरु डम ने। आपां समय समय नाल उन्हां दी नखेदी भी करदे आ, करनी भी बनती है। पर कदी तुसीं सोचिआ भी ये पैदा कैसे हुंदे ने? असीं अवेसले हाँ। भट्ट भिखा जी अवेसले नहीं हुए। उन्होंने उन्ना समा जारी रखिया काम जिन्ना समा उन्होंने पूरा नहीं मिल गया। सानू तो जिहड़ा मर्जी मिल जाए, अधूरा मिल जाए, पर थोड़ा जिहा लालच दे दे, असीं उहदी हो जाने। ये साडा दुखांत है। असीं सौखा काम भालदे आ। डॉक्टर दो तरह के हुंदे ने। पहला डॉक्टर हुंदा है जिन्हें सिर्फ ग्राहक बनाना हुंदा है। तुसीं गए हो, उन्हें तुहानूं चैक किया है, देख लिया, देखण तो बाद उन्होंने पता लग गया कि तुहाडे शरीर च दिक्कत है, तुहानूं कहंदे ऑपरेशन करना पैना है। हुण तुसीं अगों क्या डॉक्टर साहब कोई गोली बट्टी, कोई दवाई, ऑपरेशन तो बिना सर सकदा है? डॉक्टर समझ गया, क्योंकि उहदे कोल मेरे तुहाडे वर्गे बहुत जांदे ने। वो समझ गया भी जे दे तो मैं जोर पाया ना, बई नहीं ऑपरेशन ही करवाना पेगा, ये भज जाएगा। ये भज गया, मेरा ग्राहक गया। वो फिर वो भाषा बोलनी शुरू कर देगा जिहड़ी तुसीं बोलदे हो। तुसीं क्या गोली बट्टी, कहंदा हाँ हाँ ठीक है, आपां देख लेने 6 महीने 2 महीने खा के दवाई, हो सकता ठीक हो जो। तो जो 6 महीने खा ली, उहदे कोल गए, उन्हें फिर कहना जी मैं तो तुहानूं क्या ही सी ऑपरेशन करवा लो। दूजी तरह का डॉक्टर हुंदा है जिहदे कोल तुसीं जांदे हो, वो सारा कुछ देखदा है। देखण तो बाद कहंदा भाई साहब जी आ दिक्कत है, आ परेशानी है, आ काम करना पैना है। तुसीं कहंदे गोली बट्टी, वो कहंदा ना गोली बट्टी मेरे कोल नहीं, मेरे कोल तो इलाज होएगा, गोली बट्टी खानी है तो किसी होर कोल जा। गुरु नानक महाराज जी कहते जी मेरे को इलाज करवाना है, जो मैं कहांगा करना पेगा। इसे करके असीं गुरु नानक को आके राजी नहीं है। होर देहधारी कहते तुसीं आओ, जो करना करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्राहक बनाने ने, उन्होंने ग्राहकां नाल है, उन्होंने लुटना है तुहानूं बस। उन्होंने तुहाडा इलाज नहीं करना, तुसीं मरो, तुसीं बचो, तुहाडे नाल जो मर्जी होवे, कोई मायना नहीं रखता। पर सही डॉक्टर कहता है मेरा काम है बचाना। सतगुरु गुरु नानक महाराज जी कहते मैं ग्राहक नहीं बनाने, मैं तो सोझी देनी है। मार्केट के अंदर वही चीज आती है जिसकी डिमांड होती है। असी सौखे करके डिमांड वधा दी गए। अगों क्या बई चलो किरपा तां आवेगी जेकर तुसी गोलगप्पे खाओगे। इस तो सौखा काम की हो सकता है? तो किरपा होनी शुरू हो गई। गए अगों क्या भी सवेरे नितनेम उठ्या करो। असी क्या बाबा जी उठ्या नहीं जाता, कहते कोई गल नहीं, जो उठते हो उदों नितनेम कर लिया करो। बाबा जी टाइम नहीं हुंदा, चलो कोई गल नहीं,
नेड़े तेड़े गुरुद्वारा साहब है, उत्थे जाया करो। नहीं जी नेड़े तेड़े है कोई नहीं, चलो रस्ते च मत्था टेक जा करो। नहीं टाइम नहीं हैगा बाबा जी। अच्छा कोई गल नहीं, संगरांद नूं महीने मस्या नूं मेरे कोल आ जा करो। ये गल ठीक है बाबा जी, असीं आ जावांगे। ਉਹਦਾ भी काम चल गया, साडा भी काम चल गया। असीं सुखाली चीज़ चाहते हैं, सौखा काम चाहते हैं। उन्हां नूं पता है, उन्हां साडी दुखदी हुई रग नूं फड़िया होया है कि बस गोल गप्पे खवाई जाओ, किरपा आपे होनी शुरू हो जाएगी। ये भी चाहते हैं, असीं भी चाहते हैं। तुसीं जिहदी डिमांड करोगे मार्केट चों ही चीज़ आउणी जे, तुहानूं सुचेत होना पैना है। पाठ साहब जी कहते रहो संत हों टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपसी मुखोए पंडित मिठे, बरस एक हों फिरियो किना ना परचो लायो। एक साल मैं फिरिया, थां थां ते गया, मैनू बाहरी पहरावे वाले बाहरी भेख वाले ते मिले, पर पूरा कोई नहीं मिलिया। ऐसा कोई नहीं मिलिया जिहड़ा मैनू तसल्ली करवा सकदा होवे, जिहड़ा मैनू संतुष्टि दे सकदा होवे। गुरु अंगद महाराज जी किन्ना समा फिरे जी, जदों आए ते पहली मिलनी च वो चीज़ मिल गई जो इन्ना समा भटकण तो बाद भी नहीं सी मिली। ते जिन्हां दा सवैया तुसीं पढ़ रहे हो, जिन्हां दे बाबुल सवैया पाठ साहब जी कह रहे हैं गुरु अमरदास महाराज किन्ना समा भटके, गल नहीं बनी। पर जदों गुरु अंगद महाराज जी की शरण च आए, असल आनंद तो उदों ही प्राप्त होया सी। फिर महाराज जी खुद कहते हैं आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। पूरे सतगुरु दे कोल आनंद है, खेड़ा है, चाओ है। जिस मिलिया होए आनंद सो सतगुरु कहिए, जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए। मन की दुविधा बिन सजाए परम पद लईए। ये जिन्ने भी बाहरी भेख पहरावे वाले ने प्यारिओ, ये सिर्फ दुविधा खड़ी करते ने। इन्हों ने तुहानू चक्रां च पाई रखना है, आ काम करो, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, आ नहीं खाना, आ खाना है, आ पहरावा पाना, आ नहीं पाना। साफ राह है, गुरु नानक महाराज जी ने दिता है, कोई विंगा टेढ़ा नहीं हैगा। छड्ड दिओ सब नूं, एको गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की शरण च आ जाओ। जीवन खुशियां नाल ना भर जाए तो फिर क्या जाए। आनंद पाया मेरी माए। महाराज कहते सारियां दुविधा हटा देंदा गुरु, पूरा गुरु। अधूरा दुविधा खड़ी करदा है, अधूरा तुहानू अधूरे रखदा है। क्यों? क्योंकि साहिब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कित्थों खाए। जिहदा मालक ही नंगा भुखा है प्यारिओ, ओदा चेला कित्थों रज के खा सकदा है। जिहदा गुरु ही दुखी है, जिहदा गुरु ही रोंदा है, जिहदा गुरु ही परेशान रहिंदा है, सोचो उहदे चेले दा की हाल बनेगा। साहिब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कित्थों खाए, किवें खा लेगा। अधूरे कोल जाओगे तुहानू पूरियां किवें कर देगा, नहीं करेगा। पूरे कोल समर्था है, वो पूरा कर सकता है। और जिउंदियां जी पूरे होना है, मरण तो बाद सारी पूरे हो जाते हैं। तो जेकर जिउंदियां जी पूरे होना है तो फिर पूरे का पल्ला फड़ना पैना है। जिस तरह भट्ट साहब जी कहते मैं तो फड़ लिया गुरु अमरदास महाराज जी का पल्ला, तो जदों का फड़ लिया पल्ला होया कि कहते कहते सुनी रहत को खुशी ना आयो। मैनू तसल्ली नहीं हुई, वो आनंद नहीं आया, क्योंकि वो खुद आनंद तो सखने सी, सिर्फ गल्लां करते सी आनंद दियां। वो खुद आनंद तो सखने सी, नहीं आनंद मिलिया। हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हों क्या कहूं। जेड़े छड़ दिंदे ने, जिन्हां दा फासला बन जाता है। मैं आरंभ विच बेनती की सी कि मनुख दा सब तो वड्डा दुखांत की है जी? पहला है कि वो अधूरा है, ते दूजा मैं छड़ दिता सी, दूजा भटक गया है। एक अधूरा होवे ते दूजा भटक जाए, उस बंदे दा रब ही रख है। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। प्यारिओ, ऐसा गुर वड्डे भागां नाल मिलदा है। ऐसे सतगुर दे चरनां 'च तुसीं बैठे होए हो,
ऐसे सतगुर दा पावन आगमन तुसी मना रहे हो जिहड़ा सही मायनिਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ वाला है और राह दसन वास्ते ही जगत च आया है। जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लायन हरस्यों लैन मिलाए। धन 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 जन आया इसे कारज वास्ते संसार च गुरु रामदास महाराज जी का आना होया है तां जो टुटिया होया नूं भुलिया होया नूं भटकिया होया नूं सही राह दस सके। अधूरा ते दूजा भटकना ये दोनों चीज़ां दुनिया का कोई व्यक्ति तुहाडियां दूर नहीं कर सकता सिवाय गुरु तो। हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहूँ गुरदई मिलायो भिखिया जिब तू रखै तिब रहूं। महाराज परमात्मा ने मेरे ते कृपा की, बेशक मैं बहुत भटकिया पर अखीर मैनू तुहानू मिला दिता। हुण जिवें तुसीं रखोगे ना मैं उस हालात जिमें तुसीं रखोगे मैं उस परिस्थिति के अंदर खुश हाँ चाओ च हाँ आनंद च हाँ खेड़े च हाँ जिमें तुहाडी इच्छा जिमें तुहाडी मर्जी। आपां भी अज महाराज जी के चरणों च अपने आप नूं भेंट करना है। यही सब तो वड्डी भेटा है। तन मन अर्पों पूज चढ़ावूं गुर प्रसाद निरंजन पावूं। महाराज जिमें तुसीं रख दिओ मैं राजी हाँ। जिस राजा तुसीं रखोगे मैं खुश हाँ आनंद च हाँ ते सच करके जाणिओ धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह तुहानू कदी दुखी नहीं होने देणगे। कदी भी ऐसा समा आउण ही नहीं देणगे कि तुहानू दुख तकलीफां च हारना पै जाए। महाराज जी कृपा करन रहमत करन दया करन ये बचन साडे सारियां दे हिरदियां च वस जाण। आप समूह संगतां दा धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट शुक्र धन्नवाद। अति सत्कारयोग सिंह साहिब जी का धन्नवाद। समूह प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद। आखिर आप समूह संगतां नूं सारे सिख जगत नूं धन सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी के प्रकाश पुरब दियां आगमन पुरब दियां लख लख वधाइयां पेश करदा जी। होईयां बेअंत भुलां दी मुआफ़ी समूह संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।